Good morning, students. Myself, Rajesh Singh, your English teacher, and I'm going to start a new chapter that is. मॉर्निंग सर सर वीडियो Don't नहीं दिख disturb the रही है। class. हेलो सर प्लीज। Today, yeah, okay, fine. I hope you can see the contents written or the word meaning or the new words written on the board. Try to first let us see which chapter is this and from which unit I have taken this. It is taken from English Marigold unit number 3. English Marigold unit number 3, chapter number 6, page number 48. Page 48. Page number 48. Okay. So today we're going to learn about a story. The name of the story is Robinson Crusoe Discover a Footprint. Okay, what do you mean by discover? Let us see first. Robinson Crusoe is the name of a person. ये किसी व्यक्ति का नाम है. And what do you mean by discover? Discovers का मतलब होता है खोज करना, आविष्कार करना. Discovers. Okay. A footprints. A footprint means a पैरों के निशान, एक पैरों के निशान. So Robinson Crusoe discover a footprint. Okay. Now, please, students, look at the some new words. Savage. What do you mean by savage? Savage means जंगली मनुष्य, दैत्य. जो जंगली बड़े बड़े दानव होते हैं, दानव, उनको हम savage कहते हैं. Next, what do you mean by wandered? Wandered का मतलब होता है यहाँ वहाँ भटकना, without any definite route or destination. Boulder. Boulder का मतलब साहसी. Boulder means साहसी और strong होना अंदर से. Destroyed. नष्ट होना. Destroyed. My mobile was destroyed by Mr. X. यानी नष्ट होना, खराब होना. Next, cave. Cave means गुफा. I hope you understand the introductions of the chapter. I'm going to teach you chapter number 6, and the name of the chapter is Robinson Crusoe Discover a Footprint. Now you can see here, this is the man. Can you see in the picture this fellow? This is the man Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, and he discovered what? A footprint. Can you see a footprint on the picture? Here you can see on the picture footprint. यहाँ पे Robinson Crusoe ने एक footprint का आविष्कार किया. Now let us see. I am starting from the cloud. ऊपर से देखना, from the cloud. Okay. Now let us see. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. The first line, it's an introduction of the story. Story में story को start करने से पहले कुछ introductions होता है. So here is some introduction that Robinson Crusoe ship means now. जहाज, पानी में चलने वाली जो गाड़ी vehicles होती है उसको ship बोलते हैं. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Destroyed means नष्ट होना, खराब होना. Robinson Crusoe जो है वो एक सेलर था. सेलर मीन्स यहाँ से वहां नाव के द्वारा यात्रा करता था, घूमता था. तो समुद्र के कारण उसकी जो नाव थी वो खराब हो चुकी थी. He had been alone for many years and longed for company. वो काफी सालों से अकेला था. उसके नाव खराब होने का due to his as the boat was destroyed by the sea, he was alone for several years. And he was, उसकी इच्छा थी कि वो किसी कंपनी या किसी फ्रेंड के साथ रहे. He longed for a company. Longed means इच्छित होना. Next, one day he discovered a footprint on the sand. One day Robinson Crusoe discovered a footprint, पैरों के निशान, on the sand, यानी रेत पर. What do you mean by sand? Sand means बालू या रेत. रेत पर एक दिन रॉबिन्सन क्रूसो ने रेत पर पैरों के निशान ढूंढ निकाला, यानी उसका आविष्कार किया, खोज निकाला. Next, now let us find out what he did then. उसके बाद उसने क्या किया. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. One day,
Yes, आपको पता है, you know that the boat of Robinson Crusoe is destroyed by the sea. So Robinson Crusoe is narrating a story to you. आपको वो narrate कर रहा है, बता रहा है एक story. That one day when I was going towards the sea, towards my boat, मैं जब समुद्र के किनारे अपने बोट के पास जा रहा था, I was surprised. I was surprised means मुझे बड़ा अचंभित हुआ, मैं आश्चर्य हुआ to see a footprint. वहां मैं जब गया तो I saw a footprint on the sand. Footprint of a man. किसी व्यक्ति का footprint दिखा मुझे on the sand. Sand means बालू पर मुझे. आप समुद्र के किनारे, if you go at a shore, sea shore or and the ocean shore, then there will be a sand. बालू रहता है ये. वहां जाने के बाद वो बोट की तरफ जा रहा था, but he saw the footprint of a man and he was surprised. Next. आई स्टूड अमेज्ड, वो अचंभित रहा कि ये आखिर हुआ कैसे, कहां से किसके पैर के निशान आए. आई लिस्टन, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग. आई लिसन, मैं शांत होकर सुनने लगा अपने अगल बगल आसपास. आई वॉज क्वाइट and I was trying to listen something, looking around that either there is someone or not, but there I did not hear anything. Robinson Crusoe is saying that he did not hear anything and he did not saw anything. उसने ऐसा कुछ नहीं देखा, पैरों के निशान है लेकिन अगल बगल ना किसी की आवाज आ रही है ना कोई दिख रहा था. Okay, now let us see. I went up higher to look down. मैं हायर और ऊपर जाके देखने की कोशिश की कि कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं. He went up higher और ऊपर जाकर के, अगर मुझे भीड़ में, if I am in a crowd and I am not able to see anything, then I will climb on top. मैं इतने ऊपर हो जाऊंगा तब मुझे दिखेगा. He thought, so he went up higher to see whether someone is there on that island. Okay, now let us see. I went up the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. Robinson Crusoe is saying that I went up the shore, किनारे से ऊपर गया, किनारे के आसपास गया, मैं सब जगह गया. I went everywhere to find the other footprints or any other person is there or not. कोई है या नहीं? But there was nothing. It was nothing. No other footprint. Only one footprint was there. I went to it again and to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. Robinson Crusoe, after searching everything, after looking around, he went to the place, the same place where the footprint was there, and he was discussing to himself कि ये कहीं मेरा वहम तो नहीं है. इट्स नॉट माई, इट वॉज माई इमेजिनेशन. ये मेरी कल्पना तो नहीं है या मेरा कोई सपना, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे फुटप्रिंट है. एंड ही वेंट बैक टू द सेम प्लेस एंड ही वाज फाइंड एंड ही सॉ द फुटप्रिंट्स देयर. इट वाज नॉट अ ड्रीम, इट वाज ट्रू दैट देयर वाज अ फुटप्रिंट. यह हकीकत थी कि वहां पे एक फुटप्रिंट था. ठीक है, और वो देखने गया वहां पे. नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी. बट आई वाज नॉट मिस्टेकन, for there was exactly the footprint of a print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. Yes, पर उसने कहा कि ये मेरी कोई, it was I was not mistaken. मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, यह वास्तव में किसी मनुष्य का ही पैर है. एवरीथिंग उसमें फुट दिख रहा था, टोस एंड हील्स, एवरीथिंग exactly like a footprint of a foot of a man. Now, I stayed a long time thinking, but came more and more confused. मैं काफी देर तक सोचता रहा कि ये आखिर फुटप्रिंट आया कहां से. काफी देर तक सोचता रहा और जैसे जैसे मैं सोच रहा था वैसे वैसे मैं अपनी ही बातों में उलझता जा रहा था. I was coming more confused and confused. At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bushes and tree to be man. At last, आखिरकार, at last I was returning. I returned home. आखिर में मैं घर वापस आया. Yes, frightened, दिल में डर लिए कि समुद्र के किनारे तो मेरी नाव खराब है और मैं यहाँ काफी सालों से अकेला रह रहा हूँ. आई एम हियर फॉर द alone for several years. I am here on this island alone for several years.
but today I have seen a footprints of a man. And the person Robinson Crusoe, he was what? Frightened. वो डर गया, डरा हुआ था जब वो घर वापस आ रहा था. आफ्टर एवरी 2-3 स्टेप्स का मतलब होता है हर 2-3 कदम बढ़ने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता था. ओके और इतना डर गया था दैट ही मिस्टूक एवरी ट्री एंड बुशेस टू बी मैन. उसे वो इतना डर गया था कि उसे जितनी झाड़ियां और पेड़ दिख रही थी उसमें आदमी दिख रहा था. ओके मतलब इतना डर गया था कि वो जब पीछे मुड़ के देख रहा था उसे बुशेस में भी आदमी दिख रहे थे, पेड़ में भी आदमी दिख रहा था. नाउ लेट अस सी. व्हेन आई केम टू माय केव व्हिच आई कॉल्ड माय कैस्टल. जब वो अपनी गुफा में आया और उस गुफा का नाम उसने रखा था कैस्टल. I ran inside it as it I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or I went in by the hole in the door. Okay, that cave was the door of the cave. गुफा का जो डोर था वो पत्थर का बना हुआ था. It is made of stone. वो इतना डरा हुआ था और वो इतनी तेजी से दौड़ के गया कि ऐसा लगा like someone is chasing him. Chasing means कोई उसका पीछा कर रहा. वो इतनी तेजी से अपने गुफा के अंदर गया. उसे इतना भी याद नहीं है कि उसने सीढ़ियों का लेडर का यूज किया या वो सीधे उस होल से अंदर चला गया, होल से गुफा के अंदर चला गया. विच आई कोल्ड डोर मतलब वो रॉक का था, पत्थर का डोर बना हुआ था. उसने वो डोर के मतलब होल के अंदर से घुस गया या सीढ़ी लगाया, कैसे करके घर के अंदर आया उसे इतना याद नहीं रहा. He did not remember whether he entered the cave through the door, that is the rock, or through the hole, because he was frightened. वो इतना डरा हुआ था. आप ये बताओ अपने घर में रात को 11 बज रहे हैं, सब लोग घर के बाहर हैं, आप अकेले घर में हो और किसी की चलने की आवाज अगर आती है तो वास्तव में आप भी काफी डर जाओगे. आप हल्का सा दरवाजा, इफ यू ओपन द डोर एट योर ओन हाउस एट नाइट एंड इफ यू आर अलोन, आपको भी कुछ ना कुछ दिखेगा. वो पर्दा टंगा होगा ना, कर्टन, तो उसमें भी लगेगा कि कोई आदमी आ रहा है जा रहा है. राइट ना? यस. लाइकवाइज रॉबिन्सन क्रूसो भी काफी डर गया था. उसे ये पता नहीं चला कि हाउ ही एंटर द कैफ. वो अपनी गुफा में कैसे घुसा. वो तो इतनी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था. आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. मैं इतनी तेज दौड़ कर आया. रॉबिन्सन क्रूसो ही इज सेइंग दैट आई रैन faster than any other animals. मैं बाकी जानवरों से भी ज्यादा तेज दौड़ा. To cover myself, to protect myself, अपने आप को बचाने के लिए. Because Robinson Crusoe have seen a footprint on the seashore. Now, I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. Now, the narrator is saying that the more that night, Robinson Crusoe did not sleep. He was thinking the whole night that whose footprint was that. And he's saying that the more he was thinking, the more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं जितना सोचता जा रहा था उसके बारे में मैं उतना डरता जा रहा था. The more afraid I was. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Yes. Now, अब वो कल्पना करने लगा, सोचने लगा, अपने आप में थिंक करने लगा. He started thinking. सोचने लगा कि that might be a savage. That footprint might be of a savage. मुझे वो रॉबिन्सन क्रूसो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो कोई सैवेज का था, यानी कोई वो फुटप्रिंट जो था जंगली मनुष्य का था. आपने जंगली मनुष्य देखा होगा, वो जंगली मनुष्य मनुष्य को मार के खाते हैं, जानवरों को मार के खाते हैं. तो रॉबिन्सन क्रूसो काफी डर गया था और उसने ये कहा, ही सेड दैट he imagined, he think himself that the that footprint might be the footprint of a savage who had wandered out to the sea. जो समुद्र से जो अपने नाव पर समुद्र की तरफ घूमने के लिए निकला था. मुझे लगता है कि उसी दैत्य, उसी जंगली मनुष्य का, किसी जंगली मनुष्य का पैर है. यस. नाउ लेट्स सी. Luckily I was not on the shore at that time, but what if he had seen my boat? Here the here the Robinson Crusoe is saying that, oh God, I was lucky, मैं बहुत lucky था, that at that time I was not on the shore. यानी shore means किनारा, तट पर, तट, समुद्र की तट पर, सी के तट पर, किनारे मैं नहीं था जब वो दैत्य वहां आया था.
गॉड, मैं बहुत लकी था कि उस वक्त जब वो व्यक्ति जो जंगली जानवर या जंगली मनुष्य जो था, जिसके फुटप्रिंट्स बिल्कुल इंसानों से मिल रहे थे, वो समुद्र के तट पर नाव से आया था घूमने के लिए, टहलने के लिए। अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब उसके अंदर डर बढ़ गया, रॉबिन्सन क्रूसो के अंदर डर बढ़ गया। That he said that, oh, what will happen if that man might have seen the my boat? उसकी नाव वहां पे खराब हो रखी थी और वो नाव देखने गया था, उसी वक्त उसे वहां पे फुटप्रिंट दिखा, तो वो अपने आप में क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि अगर उस दैत्य ने मेरी नाव देख ली होगी, मेरी बोट को अगर उस दैत्य ने देखा होगा, तो उसे पता लग गया होगा कि इस आइलैंड पे, इस महाद्वीप पर मैं रहता हूं और वो अपने साथियों के साथ आएगा, मुझे मारकर खा जाएगा। दिस व्हाट ही इज थिंकिंग, ये रॉबिन्सन क्रूसो सोच रहा है। नेक्स्ट, एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और इसलिए मैं काफी दिनों तक भयभीत था, डरा हुआ था, और मैं भगवान से दुआ कर रहा था। आई वॉज प्रेइंग गॉड फॉर प्रोटेक्शन, मैं अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए मैं भगवान से प्रे कर रहा था। नेक्स्ट, इन डूइंग सो आई वॉज मच कंफर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए, मैं उसी गुफा में बंद था, धीरे धीरे कंफर्ट में आने लगा, मतलब मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा, और मैं बाहर इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल रहा था। इन्वेस्टिगेट मीन्स टू एग्जामिन, यानी कि छानबीन या जांच पड़ताल करने के लिए मैं धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और मेरा डर खत्म होने लगा। ओके, but even now as I went forward I looked behind frequently because I was still very frightened. अब काफी दिनों के बाद भी मैं अपने गुफा से बाहर निकला। आई वेंट आउट ऑफ माई कैफ आफ्टर सो मेनी, आई केम आउट आफ्टर सो मेनी डेज, बट स्टिल द फियर इज इन माई हर्ट, इन माई माइंड। मेरे दिमाग में अभी भी डर बैठा हुआ था। अब भी मैं क्या करता था, अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखता था कि कहीं कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा। नेक्स्ट, however, as I went about for 2-3 days and saw nothing, I became a little bolder. 2-3 दिन तक लगातार मैं जांच पड़ताल करने के लिए, ढूंढने के लिए, एग्जामिन करने के लिए बाहर निकलता गया, तो मुझे कुछ नहीं दिखा और मेरे अंदर से डर खत्म हुआ। मैं थोड़ा साहसी हो गया, बोल्डर, साहसी, मेरे अंदर साहस बढ़ गया, अब कोई नहीं है। नेक्स्ट, I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footprints. Okay. Now, Robinson Crusoe is saying, he is narrating you. He is saying that now I am not frightened. मैं नहीं डरा हुआ नहीं हूँ. Now I should go to the shore. Shore means समुद्र के किनारे. Shore, किनारा, तट पर. To examine, फिर से एग्जामिन करूं कि आखिर वो फुटप्रिंट किसका था। टू एग्जामिन द फुटप्रिंट, टू एग्जामिन द फुटप्रिंट, इस फुटप्रिंट को एग्जामिन करने के लिए वो दोबारा समुद्र तट पर, यानी कि समुद्र के किनारे गया। एंड ही सेड दैट दिस टाइम आई विल मेजर, मेजर मींस मैं नापूंगा कि ये फुटप्रिंट किसका है। विथ व्हाट, किससे नापेगा वो, विथ हिज ऑन फुट, measure with his own foot, measure with his on foot, वो अपने पैरों के तलवे से, अपने फुट से इस फुट को वो मेजर वो करना चाह रहा था, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, छानबीन कर रहा था, कहीं पता लगा रहा था कि कहीं छोटे बच्चे का है कि जंगली मनुष्य का है। नाउ लेट अस सी, as I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. As Robinson Crusoe was coming closer to the footprint, जैसे जैसे वो footprint के करीब आ रहा था, footprint के करीब आ रहा था, उसके अंदर वो पूरा विश्वास था कि ये फुटप्रिंट रॉबिन्सन क्रूसे का नहीं है। उसे विश्वास था कि यह फुटप्रिंट उसका नहीं है, क्योंकि वो काफी दिनों से he have never been for many days to the what beach, उस
तट पर, उस बीच पर वो काफी दिनों तक नहीं गया था. सो he was sure that this footprint is not the footprint of Robinson Crusoe. यानी उसे इतना विश्वास था कि यह फुटप्रिंट उसका नहीं है. Now, secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. जैसे ही रॉबिन्सन क्रूसो ये कह रहा है, जैसे ही मैंने अपना फुटप्रिंट इसके अंदर रखा, अपना पैर इसके अंदर रखा, तो मुझे पता चला कि अरे यार, ये फुटप्रिंट तो मेरे फुटप्रिंट से भी बड़ा है. माई फियर रिटर्न, मेरे अंदर डर फिर आ गया. मैं फिर डर गया. He was frightened again. I went home again, believing that there was someone there. और मैं इतना डरा हुआ घर वापस अपने कैफ में. I went to my caf and I was fully fear. Okay, I was fully frightened. मैं पूरा डरा हुआ अपने गुफा में गया. और लास्ट में जिसने भी ये कहानी लिखा है, उसने ये लिखा है कि द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड मीन्स बसा हुआ. बाद में वो तो रॉबिन्सन क्रूसो को पता नहीं है. रॉबिन्सन क्रूसो इज नॉट नोइंग दैट वहां पे लोग रहते थे. इनहैबिटेंट मीन्स वो जो आइलैंड था, महाद्वीप था, वहां लोग बसते थे. द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. ये आपको बताया. रॉबिन्सन क्रूसो को पता नहीं है अभी भी, वो डर के मारे अपनी गुफा में गया है. ओके ना. लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया कि वो फुटप्रिंट किसका था. वो फुटप्रिंट किसी मनुष्य का था और वहां लोग मनुष्य रहते थे. यस. लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो आज भी गुफा के अंदर छुपा होगा. ओके. उसे ये पता नहीं था कि उस आइलैंड पे लोग रहते थे. उसने जैसे अपने पैर से उस पैरों के निशान को नापा, उसका डर वापस आ गया, क्योंकि वो जो पैरों के निशान थे, रॉबिन्सन क्रूसो के पैरों के निशान से बड़े थे. ओके, दिस वॉज योर स्टोरी. ये आपका स्टोरी था. अब हम स्टोरी के बारे में कल फिर बात करेंगे. अभी आज कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आया होगा. रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर अ फुटप्रिंट. ओके क्लास.